अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया था। बोर कमीशन की रिकमेंडेशन 1946 में आई थी। अंग्रेज जब छोड़कर जा रहे थे देश, तो उनको पता था कि एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे सेक्टर हैं, यदि इनको स्ट्रेंथन नहीं किया, यदि इनको सिक्योर नहीं किया आम लोगों के लिए या मेजॉरिटी के लिए, तो ये जो सिस्टम कास्टिस्ट सिस्टम जो आएगा, ये सारे पूरे लोगों को या पूरा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो ब्रिटिशर्स जो स्टेब्लिश करके जा रहे थे उसको सबको खा जाएगा, इनगल्फ कर जाएगा। वो वॉर कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं था कि आप पीपी में मॉडल पे चलाएंगे। वॉर कमीशन ने ये नहीं कहा था। वॉर कमीशन ने ये नहीं कहा था कि आप जो लैब फैसिलिटी हैं उसको प्राइवेट में दे देंगे। वॉर कमीशन ने ये नहीं कहा था डॉक्टर जो रखे जाएंगे स्पेसिफिक वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे। कहीं ये लिखा था? प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप कुमार सर को नेशनल जनरल सेक्रेटरी इम्पा, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली। With the remembrance of our forefather and all the great leaders who have sacrificed their life for upliftment of this Mool Nivasi Bahujan Samaj, and all the respected dignitaries on the dais, particularly Dr. Rajesh sir, Professor Ratan Singh sir, Professor Sanjeev Tudu sir, and Dr. Ashok Kumar, who are all elderly. We have all learned how to actually go through the social movement. And first thing, though we have discussed this several times, that what was the motto, why we created this IMPA. In fact, for several years, I think from 2007 and onward till 2014, I was General Secretary of SC/ST Medical Association. And before 2007, because here Sanjeev sir is here, Tudu sir is here, Dr. Ashok Kumar is here, Professor Ratan Singh is here, they all were witness that how this SC/ST Medical Association were formed and what was the motto. But what I have observed during my tenure as a General Secretary of SC/ST Medical Association, that people used to come only for 2-3 things. In SC/ST Medical Association, there was a tradition that one fresher party was there, one annual function is there, and maybe in between there is a 1 or 2 function where family they meet and they organize a get-together for the informal meeting. So that was the purpose. And what was the work? Because DG sir has gone. But from 2007 to 2013, I got the message or I got the interaction from the faculty or from member of SC/ST Medical Association to have some work to DG sir, to Secretary Health, to Health Minister, and to HODs of various departments, and to get some personal favor or get some personal work. I always said that what was the goal of that organization, SC/ST Medical Association? Why that association was formed? Only to help the medical professionals who has already reached up to a certain level after doing MBBS, MS, who become the faculty or who is in the process of becoming faculty and senior specialist or whatnot. So we thought that this is not the goal. They always advocate the ideology of Baba Sahib. And what Baba Sahib has set, what Baba Sahib set a goal for us. बाबा साहब ने तो ये नहीं कहा था कि भाई डॉक्टर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ तो आपका काम हो गया। तो जो पहला टॉपिक है, जो पहला जो सब्जेक्ट है यहां पर रखा गया
status of OBC, SC, ST and convert minorities as a provider and consumer at present in the health system in India. हम हर बार डिबेट करते हैं, हमेशा डिबेट करते हैं, और ये डिबेट करने का सब्जेक्ट नहीं है। ये जब तक चेंज नहीं होगा सिस्टम, जब तक हम लोग आइडियोलॉजिकली हम लोग डिफरेंशिएट करना नहीं सीखेंगे कि आइडियोलॉजिकली हम एज ए कंज्यूमर और एज ए प्रोवाइडर कहां खड़े हैं और क्या डिफरेंस है। मैं आप लोगों से एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं। मैं आज अशोक रोड से आ रहा था, इंडिया गेट से होके, एंड 10 अकबर रोड, अभी मैं बात कर रहा था, 10 अकबर रोड बीजेपी का ऑफिस होता था एक समय में। आज जब मैंने देखा तो अचानक से निगाह पड़ी मेरी कि क्या है ये, यहां पर इस पहले वाले बीजेपी के ऑफिस को कौन ऑक्युपाई कर रहा है। तो वहां पर एक नेम प्लेट लगी थी, वो कोई संस्कृति उनकी सीमित होती है आरएसएस और बीजेपी की। आप सोचिए, ये है आइडियोलॉजी। गवर्नमेंट एकोमोडेशन जो लुटियन जोन में जो कभी भी इस समय जो रूलिंग पार्टी है, उसका अभी कुछ साल पहले ऑफिस जो उन्होंने खाली किया, वो किसी एमपी और किसी मिनिस्टर को नहीं दिया। उन्होंने किसको दिया? एक कल्चरल उनका ऑफशूट विंग है, उसको अलॉट किया। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, राइट, बट व्हाट आई सॉ टुडे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने और जितने भी हमारे फोर फादर थे वो ये कहते थे कि ये डॉक्टर अंबेडकर की अगर पूरी आप फिलॉसफी देखें तो हर समय बाबा साहब ने कहा है कि इससे रूल कौन करता है? रूल बीजेपी, कांग्रेस और कोई पार्टी नहीं करती, आइडियोलॉजी रूल करती है। कांग्रेस के टाइम पे भी वही आइडियोलॉजी थी, बीजेपी के टाइम पे भी वही आइडियोलॉजी थी। इवन अभी जो डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर बोल के गए कि बिहार में हम 30 साल से 33 साल से बहुजनों की सरकार है, लेकिन आइडियोलॉजिकली क्या है? किसके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? हैव दे फॉलोड आइडियोलॉजी ऑफ फुले एंड अंबेडकर? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जब हमने इतने सालों जब काम किया तो सोचा कि एक टाइम था, मैं 95 बैच एमबीबीएस केजीएमसी से बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से पढ़ के जब हम तैयारी करते थे, कभी नहीं सोचा था कि हम मेडिकल में सिलेक्ट होके वो भी एमबीबीएस। क्योंकि अभी जैसे सर ने कहा कि 90% लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए इंटरमीडिएट के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, और जो बच्चा बुंदेलखंड के एक छोटे से गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा हो, वो कभी भी नहीं सोच सकता कि उसका सिलेक्शन एमबीबीएस में होगा, और एमबीबीएस के बाद वो केजीएमसी सिलेक्शन ही नहीं होगा, सीपीएमटी से केजीएमसी से करेगा। उस समय तक कोई हमें सोशल एजुकेशन नहीं था। हम हेल्थ स्टेटस ये देखते थे। हेल्थ स्टेटस क्या था? एज ए कंज्यूमर क्या था? मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे फादर क्लर्क थे, बरसात का महीना था, ही वॉज एल्कोहलिक, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मेरे फादर एक रात में ड्रिंक किए, बारिश का महीना था, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हुआ, हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। अब डॉक्टर हूं, उस समय छोटा बच्चा था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 10,000 पॉपुलेशन का वो विलेज था, और बहुत सारे वहां क्विक थे, कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर तो था नहीं। आपको बताएं, हर डॉक्टर के दरवाजे पे गए, और 9:30 का वक्त था, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी डॉक्टर ने कहा क्यों? क्योंकि सबको पता था कि ये एक तो शेड्यूल कास्ट है, दूसरा एल्कोहलिक है, तो क्या करना था, मरने दो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पीएससी थी, पीएससी में एक मेडिकल ऑफिसर होता था। वहां पर जो मेडिकल ऑफिसर होता था वो 6 बजे के बाद वहां ताला लग जाता था, पीएससी में कोई एंटर भी नहीं कर सकता था। ये हालत थे। अब आप सोचिए कि 40 साल के बाद भी वही स्थिति है।
मेरे ही गांव में आफ्टर 40 इयर्स अगर मैंने देखा तो और डिटेरिएशन ही देखा, वहां कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर किसी को एमआई हो जाए तो आप सोचिए कि या तो झांसी जाएगा विच इज 120 किलोमीटर अवे, या कानपुर जाएगा दैट इज 170 किलोमीटर अवे, या बांदा जाएगा 110 किलोमीटर अवे। तो ये हम एज ए कंज्यूमर, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। वहां अगर ब्राह्मण बनिया भी रहता है तो अगर उसको इमरजेंसी केयर की जरूरत है तो उसका भी यही हाल है। कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी विवेक आर्टिकल 47 और आर्टिकल 21 की बात कर रहे थे। आर्टिकल 47 में इट इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड द पब्लिक हेल्थ एंड ऑल्सो टू एक्चुअली मेक एंडेवर टू रेज द लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, एंड also duty to prohibit the illicit use of the drug. ये emphasize इसलिए कर रहा हूं कि ज्यादातर हमारे लोग बेचारों को काम नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं या जो मजदूरी करते हैं, क्यों लोग एल्कोहलिक हो जाते हैं, क्यों लोग ड्रग एडिक्ट बनते हैं, युवा क्यों ड्रग एडिक्ट बनता है? अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले, अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले, अगर उसको प्रॉपर हेल्थ मिले, या यूं कहें कि जैसे अभी सर ने बताया, डॉक्टर अशोक कुमार ने प्राइवेटाइजेशन हेल्थ केयर सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन, सर डीजी थे, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात हो रही थी, 2010 की बात कर रहा हूं सर मैं। 2010 में मैं सर मिनिस्ट्री में गया, मैंने कहा सर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को रोक लीजिए। तो सर ने कहा कुलदीप क्या जानते हो तुम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट? आई जस्ट बिकेम ए फैकल्टी इन यूसीएमएस, मैं उस समय सेलेक्ट ही हुआ था। तो कहले कुलदीप अभी तुम रेजिडेंट थे, अभी तो फैकल्टी हो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में क्या जानते हो? तो मैंने सर को कुछ बताया, लेकिन जब आदमी गवर्नमेंट में बैठा होता है एज ए डिसीजन मेकर, तो उसके सामने जो चीजें रखी जाती हैं वो सारी पॉजिटिव चीजें रखी जाती हैं। अभी सर ने ये कहा कि आईएमए को करीब 36 करोड़ 35 करोड़ रुपीस उस समय दिए गए थे ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम को इंप्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल एक भी उसमें नहीं हुआ। सारा पैसा उन्होंने अपने एसेट, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने में लगाया। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे जागरूक लोग, अगर हम लोग एज ए कम्युनिटी मेंबर, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, अगर हम इन चीजों को जानते हैं, गवर्नमेंट की प्लानिंग को, भाई दूरदर्शी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल किसे कहते हैं? इंटेलिजेंट तो कंप्यूटर भी होता है, इंटेलिजेंट कंप्यूटर भी होता है, सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में है, लेकिन इंटेलेक्चुअल क्या कौन है? वी आर ऑल इंटेलेक्चुअल्स, वी आर ऑल फैकल्टी, वी नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 50 years. We know that what is going to happen after 10 years if this particular scheme will be implemented by the government. We know that outcome. So, when this Clinical Establishment Act is about to come and discussion was going on, when new curriculum of this medical education was started or start debating, sir, what has happened today? सर बैठे हैं प्रोफेसर टुडू सर। सर न्यू एमबीबीएस करिकुलम हैज केम, you know sir, the requirement of teachers has gone how many times? Earlier what is happening? Dr. Kirti is here, my colleague. If a small group discussion is taking, we are adopting the American system in medical education. But are we able to provide the number of resource faculty or number of the people who will provide that kind of education? That is the biggest question. So every time we keep the topic here, but content may be different. 3 days back,
I was just discussing with Dr. Kirti. One student, our community member called me कि सर उसके लड़के को रोक दिया गया एग्जाम में बैठने से, सप्ली एग्जाम में बैठने से बायोकेमिस्ट्री में रोक दिया गया. आई डिस्कस विद द कंसल्टेंट हु वाज इन चार्ज कि उसको इंटरनल में वो भी सप्ली के एग्जाम में रोक दिया गया. एक बार वो प्रॉपर अपियर हो चुका है प्रोफेशनल एग्जाम में, मेन एग्जाम में. सर रूल क्या कहता था पहले एग्जाम का कि अगर इंटरनली एक बार वो क्लियर कर चुका है तो दोबारा इंटरनल लेने की जरूरत नहीं, दोबारा प्रूफ में डायरेक्ट नहीं जाएगा. वो रूल यही था. अब क्या हुआ, अब उसको सप्ली से पहले एक वाइवा लिया गया. एक दिन पहले बताया कल आपका एक एग्जाम लेंगे, और उस एग्जाम में वो वाइवा था, रिटन था, मुझे बताया गया वाइवा था. वाइवा के बेस में उस लड़के को रोक दिया गया कि इंटरनल उसका ठीक नहीं है. Already that boy has already appeared in the main first prop, but in supply he was stopped. Now question arise कि ये जो इस तरह की एट्रोसिटी होती है, ये कौन सोसाइटी में या कौन बात करेगा, कौन ये लोगों के बीच लाएगा. मैं ये नहीं कहता कि वो स्टूडेंट डिजर्विंग है या नॉन डिजर्विंग, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा. बात इसलिए मेरिट की बात मैं कभी नहीं करता. रीजन ये है क्यों नहीं करता मेरिट की बात. जब एम्स में मैं सेलेक्ट होके गया तो पहली फैकल्टी वर्कशॉप थी जो हमारी ट्रेनिंग इंटरेक्शन होता है, और यही क्वेश्चन किया मैंने फैकल्टी. पहली मेडिकल एजुकेशन की फर्स्ट बार प्रोफेसर अडकोले वाज देयर, प्रोफेसर late Professor Rita Sood was actually coordinator of that. Professor Adkole, Professor Deepak Kumar from physiology from AIIMS, and all the stalwart of medical education were there. People were talking about the merit in medical education. I asked the people in full house, faculty of AIIMS, all the esteemed faculty, I asked what is the definition of, define the merit. Professor Rajendra Prasad sir was there, who is a senior professor of surgery in All India Institute. And not a single reply was there. There was pin drop silence. Since centuries, since independence, they were talking, and they were actually, they are pulling our people back in the name of merit. But when I asked what is that, define the merit, then nobody replied that. What is the meaning of merit? Because it's not given in the Indian Constitution. The definition of merit is not given in. Definition is not given in Indian Constitution or in any Indian book. That's why they could not understand. So they think that only getting the marks constitute the merit. It's not. Person background from where he is coming, is maybe economic background, maybe social background, hardship what he has faced, and marks, attitude, dedication towards the profession, and what is the behavior of that person amongst the fellow colleagues. If you become teacher, if you are have casteist ideology, if you belong to certain group or certain caste, and if you follow the casteist ideology, can I expect fair behavior from you while you are conducting the exam or you are doing some procedure? So that is not there. And Professor Rajendra Prasad sir has asked me, कि Kuldeep, you define, and humbly I told everybody. So there was a pin drop silence. So as I told somebody, many people, that Kuldeep, you digged your graveyard on the day one when you entered in the institution, when I joined the All India Institute. That does not affect me because we are not there. In fact, we never set a goal कि मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीएमओ बनना है, मुझे क्या बनना है. हमें जो बनना था बन गए.
ब्रेड एंड बटर अर्न करना था, वो कर लिया। अब जो है, जो बाकी का काम, जब से मिशन समझ में आया, अम्बेडकर मिशन समझ में आया, तब से ये है कि किस तरह से अपने लोगों को जगाना है। और जगाना है, हम सारी पब्लिक को नहीं जगा सकते, क्योंकि बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल वी आर वेरी बिजी पीपल, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो हम एटलीस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स को तो जगा सकते हैं अपनी जगह, जो हम अपना काम करें और ये उम्मीद करें दूसरों से। लोग बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत कम लोग आए, बहुत कम लोग आए। कोई बात नहीं, आप पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी एंड रानाडे में क्या लिखा है। सोशल वर्क इज द मोस्ट थैंकलेस जॉब। गांधी एंड रानाडे को कंपेयर किया। रानाडे गांधी से ज्यादा पावरफुल लीडर था, एक समय की बात है, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे कांग्रेस की। लेकिन वो सोशलिस्ट जो लीडर थे कांग्रेस के, उनको रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि जो सुधारवादी, जो मानवतावादी जो ग्रुप था कांग्रेस का, रानाडे उसको बिलोंग करता था। इसलिए रानाडे फिनिश हो गए। और गांधी चूंकि चापलूस था, ब्राह्मणों के को नेतृत्व करता था, ब्राह्मण बनियों के, यानी कि एक आइडियोलॉजी, कास्टिस्ट सिस्टम को फॉलो करता था। वहां कांग्रेस में ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में सभी लीडर्स एक जैसे थे। वहां यह देखा जाता था कि वो हमारी कौन आइडियोलॉजी को पुख्ता मजबूत करेगा, उस लीडर को आगे प्रमोट किया जाता था। व्हाट इज हैपनिंग हियर इन टुडे सिनेरियो, बीजेपी में क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो कांग्रेस करती थी, वही बीजेपी करती है, और वही हमारी सो कॉल्ड बहुजन और मूल निवासी पार्टियां, वही वो लोग भी करते हैं। तो हम कहां पर खड़े हैं? सर ने कहा, डॉक्टर प्रसाद ने, डॉक्टर प्रसाद को ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि हम लोग बताते नहीं थे, हम लोग भी बताते थे। कई बार सर गुस्सा होते थे, डांट देते थे, फिर भी जाते थे, सर को लेके जाता था। कई बार अपने सीनियर फैकल्टी, बहुत सीनियर लोग थे जो अब रिटायर भी हो गए, उन लोगों को लेके जाते थे। जब ये डिस्कस करते थे, कहते नहीं नहीं, फालतू की बात है कुलदीप, जातिवाद को यहां मत लाओ, डोंट ब्रिंग कास्टिज्म इन द हेल्थ केयर सिस्टम। जब सर ने एक डिसीजन लिया, मुझे याद है, कैपिंग लगा दिया स्टंट के प्राइस में, सर का डिसीजन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था, और दैट हैज बीन एक्चुअली प्रपोज्ड बाय डीजी सर, कि जो स्टंट की कॉस्ट है वो फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, प्रोसीजर का चार्ज आपको डिस्प्ले करना होगा, उससे ज्यादा चार्ज नहीं करते। मुझे याद है जिस दिन ये डिसीजन आया, करीब 100 लोगों ने, आईएमए के टॉप लीडरशिप ने मुझे कॉल किया, कुलदीप डीजी सर से मीटिंग करा दो। मैंने कहा सर किस लिए? कहने लगे यार वो बहुत ऐसा डिसीजन लिया है सर ने कि जो हॉस्पिटल्स है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उसमें बड़ा रोष है। मैंने क्यों? लूटने को नहीं मिलेगा इसलिए रोष है। बोले ये मीटिंग करा दो। और आप बिलीव नहीं करेंगे ये किस हद तक जा सकते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में इंटरनेशनल दलित कॉन्फ्रेंस हो रहा था, सर वाज वन ऑफ द गेस्ट सर, और सारा मीडिया था, ये सारे आईएमए वाले इकट्ठे होके उस कॉन्फ्रेंस के बाहर सर से मिलने पहुंचे। आप सोचिए ये अपने लिए, अपने फायदे के लिए, मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं? कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर की तरह। तो हम कंज्यूमर हैं, हमारे लिए एक सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, वो भी हमारे आदमी के इनिशिएटिव पे, और उस पॉलिसी को क्रश करने के लिए इनका पूरा सिस्टम आईएमए का लग गया था उसको खत्म कराने के लिए। एक भी दिन उसको उन्होंने डिले करना उचित नहीं समझा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको खत्म किया जाए। तो ये जो मैं इसलिए ये सारे एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कंज्यूमर में जो स्थिति, एज ए कंज्यूमर जो हमारे मूल निवासियों की जो कंडीशन थी, जो 1947 में जो थी, वो आज भी वही है और उससे वर्ष है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, मैं क्यों कह रहा हूं उससे वर्ष है? पब्लिक हेल्थ, चूंकि अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया था, बोर कमीशन की रिकमेंडेशन 1946 में आई थी। अंग्रेज जब छोड़कर जा रहे थे देश, तो उनको पता था कि एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे सेक्टर हैं, यदि इनको स्ट्रेंथन नहीं किया, यदि इनको सिक्योर नहीं किया आम लोगों के लिए या मेजॉरिटी के लिए,
तो ये जो सिस्टम कास्टिस्ट सिस्टम जो आएगा, ये सारे पूरे लोगों को, या पूरा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो ब्रिटिशर्स जो स्टेब्लिश करके जा रहे थे, उसको सबको खा जाएगा, इंगल्फ कर जाएगा, वो खत्म, फिनिश हो जाएगा। और उनका जो सोचना था, बोर कमीशन का रिकमेंडेशन जो 1946 में आया कि 10 साल में हर मेडिकल कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 75 साल में अभी ये कह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे। हमारे लोग बहुत सारे खुश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, अच्छा तो हो रहा है, बोर कमीशन का रिकमेंडेशन लागू तो कर रहे हैं। लेकिन वो बोर कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं था कि आप पीपी मॉडल पे चलाएंगे। बोर कमीशन ने ये नहीं कहा था। बोर कमीशन ने ये नहीं कहा था कि आप जो लैब फैसिलिटी हैं उसको प्राइवेट में दे देंगे। बोर कमीशन ने ये नहीं कहा था डॉक्टर जो रखे जाएंगे स्पेसिफिक, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे। कहीं ये लिखा था? आज क्या हो रहा है? यूपी में जो स्पेशलिस्ट है, एडवर्टाइजमेंट आया, सबको पता है, बोली लगाएंगे, आप अपने प्राइस लगा के आप अप्लाई करते हो। जब स्पेशलिस्ट जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्पेशलिस्ट आता है, वो अपने प्राइस कोट कर रहा है कि मैं इतने में काम करने के लिए तैयार हूं, मैं इतने में काम करने के लिए तैयार हूं। एक वो सिस्टम है जहां पर डॉक्टर अपनी प्राइस लगा रहा है, स्पेशलिस्ट। दूसरा सिस्टम जो अभी केजरीवाल सिस्टम है, जो बोलता है बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम, मोहल्ला क्लिनिक। सर अपॉइंटमेंट जो हुआ डॉक्टर्स का, किनका अपॉइंटमेंट हुआ मोहल्ला क्लिनिक में? कौन लोग बैठे हुए हैं? सारे रिटायर्ड, और जो मूल निवासी समाज से ज्यादातर लोग नहीं है, जो श्रवण कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ज्यादातर लोग, और जो उसी मोहल्ले में बैठता है। तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है उसी को मोहल्ले क्लिनिक में बैठा दिया पर पेशेंट। तो उसका प्राइवेट प्रैक्टिस तो नहीं बंद हुआ, उसको फैसिलिटेट करने के लिए केजरीवाल ने ये मोहल्ला सिस्टम शुरू किया। और इससे बड़ी बात, जो इन्वेस्टिगेशन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं हो रहे, वो इन्वेस्टिगेशन मोहल्ला क्लिनिक में प्राइवेट से करा रहा है। उसका कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट में जो अगर 1 रुपए था तो उसका 10 रुपए प्राइवेट को दे रहा है। ये बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का जो केजरीवाल जो बोलता है। अब ये सारी चीजें हमारे लोग, आम आदमी तो नहीं जानता। आम आदमी को कैसे पता चले? आप बताइए, आप सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखते हैं, केजरीवाल सरकार के आने के बाद क्या टर्सरी केयर सेंटर में लगने वाली भीड़ क्या कम हुई? क्या जो हेल्थ केयर जो केयर जो था, क्या उसका लेवल इंक्रीज किया? डिग्रेडेशन हुआ, डाउनग्रेड हुआ। वो हमारे वार्ड्स जो फुल रहते थे, वहां पर पेशेंट खाली वार्ड होते हैं इस समय ज्यादातर। पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों को समझ में नहीं आता। मैं आज आप लोगों के पास सवाल पूछता हूं, बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं, बहुत सारे रेजिडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा पेशेंट किसको एडमिट करूं जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये सोच बन रही है। किसने सोच डेवलप किया? ये सोच किसने डेवलप किया उनमें? वो सेवा करने आए हैं। रेजिडेंट का काम है लर्निंग और ट्रेनिंग। जब वो पेशेंट ही एडमिट नहीं करेगा तो सीखेगा क्या? सर्जरी डिपार्टमेंट सर, यूसीएमएस का सर्जरी 4-5 फैकल्टी से चल रहा है। आपको सर पता है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट 4-5 फैकल्टी से चल सकता है? छोटी छोटी सर्जरी, वेटिंग टाइम 1 साल 6 महीने, मर जाता है पेशेंट कॉम्प्लिकेशन से। फिर वो जब पेशेंट इमरजेंसी में आएंगे तो वो रेजिडेंट एडमिट नहीं करेगा, क्योंकि कंसल्टेंट कहेगा कि ऑपरेट कौन करेगा? कंसल्टेंट नहीं है और वहां रेजिडेंट करना नहीं चाहता।
क्या है, वार्ड खाली है, और वो पेशेंट कहां डाइवर्ट हो रहा है, प्राइवेट कारपोरेट, क्योंकि जीना है। और वो ज्यादातर जो गवर्नमेंट में जा रहा है पेशेंट या अभी तक जाता था, वो कौन लोग हैं, 99% हमारे लोग हैं। इन पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ में, अगर एक बार कारपोरेट हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाएं किसी भी एलिमेंट के लिए, अगर 10 लाख रुपए का बिल बनता है तो 10 लाख रुपए कहां से अरेंज करेगा गरीब आदमी? आप सोचिए, ये एज ए प्रोवाइडर मैं बात कर रहा हूं, आप लोग समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे कि एज ए प्रोवाइडर हम कहां खड़े हैं, एज ए कंज्यूमर का, एज ए प्रोवाइडर, दोनों बात कर रहा हूं। तो अब इन चीजों को कौन बताएगा? मेरे कल न्यूरो सर्जरी हेड ने कहा कल शाम को एक इनफॉर्मल टॉक में कि डॉक्टर कुलदीप, मेडिसिन में पेशेंट आया, एक इंट्राक्रेनियल हेमरेज, मैसिव ब्लीड था, बिना न्यूरो सर्जरी रिफरल लिए हुए उसको भेज दिया गया सफदरजंग। हमारे पास फैसिलिटी है न्यूरो सर्जरी, एडमिट होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ऐसी हिम्मत क्यों हुई रेजिडेंट्स की? किसने सिखाया उसको कि बिना कंसल्टेशन की बात किए हुए, बिना किसी न्यूरो सर्जरी कंसल्टेशन पेशेंट को भेज दिया? ठीक है, वो बचे या मरे, बचता है या मरता है पेशेंट, आउटकम उसका बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है, हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं। यहां क्या हो रहा है, यहां तो वो सोच ही नहीं रहा उसको सर्व करने के लिए, वो सिर्फ 2 लाइन लिख के वो फॉर्मेट रिफर टू सफदरजंग न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, रिफर टू आरएमएल और पोस्ट ऑफिस का। तो जो पीएससी में जो काम हो रहा था वही काम तो टर्सरी केयर सेंटर में हो रहा है। तो आपका कौन सा हेल्थ केयर मॉडल है, एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एज ए प्रोवाइडर? हमारे लोग हैं, बहुत सारी फैकल्टी है, वहां पर हमारे लोग क्या कर रहे हैं? अब ये सारी चीजें जो हैं, हम ये सभी के साथ बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। सभी के साथ डिस्कस करेंगे तो वो दूसरे फॉर्म में करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके रेजिडेंट या हमारे लोग ज्यादातर पेशेंट को भर्ती इसलिए नहीं करते कि कोई एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं। प्रोफेसर फरीदी को आज आना था, वो सर है नहीं। जब मैंने ज्वाइन किया था, प्रोफेसर फरीदी वाज एचओडी पीडियाट्रिक्स और रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट है कंट्री के। एक दिन ऐसी बात करने लगे तो कोई चीजें मैं डिस्कस कर रहा था किसी इशू को लेके, 2-4 सीनियर फैकल्टी ने मुझे देख लिया, डॉक्टर फरीदी से डॉक्टर कुलदीप का डिस्कशन हो रहा है। मुझे बुलाया, मैं नया नया ज्वाइन किया था, मुझे बुलाया, अरे डॉक्टर कुलदीप क्या बातें हो रही थी डॉक्टर फरीदी से? मैंने कहा सर कोई बात नहीं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट। कहने कि कुलदीप तुम जानते हो इनके बारे में एक बात फेमस है। मैंने कहा सर क्या? ये बुर्का वालियों को और दाढ़ी वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सीनियर फैकल्टी, एचओडी लेवल के लोग। असिस्टेंट प्रोफेसर था मैं, 1 साल भी नहीं हुआ था। ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि यदि आप अवेयर नहीं हैं, यदि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए या सोशल राइट्स के लिए या अपने लोगों के राइट्स के लिए अगर अवेयर नहीं है, तो आपको जॉम्बी बनाने में वो 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स का यही हाल है। हमारे स्टूडेंट सरस्वती पूजा में तो बढ़ चढ़ के यहां हिस्सा लेते हैं, कार्ड लेके आते हैं, सर सरस्वती पूजा में आना है। कोई स्टूडेंट आज तक आया कभी ये लिखी कि सर स्टूडेंट जो है अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पे या फूले की जयंती पे या कोई हम बुद्ध पूर्णिमा कोई ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं? कोई ये कहने आया सर हमारे इधर लाइब्रेरी नहीं है हॉस्टल में, सर हमारे इधर न्यू बुक्स नहीं है लाइब्रेरी में, सर आप मदद करिए? कोई कभी आया? मैं तो ओपन क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं, अभी भी कह रहा हूं। लोग कहते हैं कि वहां फैकल्टी से डिस्कस करो। फैकल्टी से डिस्कस करने जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड उनका आंसर होता है, डॉक्टर कुलदीप हम आपकी आइडियोलॉजी से सहमत हैं, हम आप जो कर रहे हैं स्ट्रगल से उससे सहमत हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि हम एक्सपोज हों हम आपके साथ, वो नहीं करेंगे। तो अभी जैसे डॉक्टर कीर्ति ने कहा कि सिर्फ चेक कार्ड देना ही पे बैक सोसाइटी तो नहीं है। आप 10 लोग ऑनेस्ट मेडिकल प्रोफेशन के ढूंढ के दिखा दीजिए मुझे, जिनका पर्सनल पिछले 20 साल की मैं बात करता हूं, 20 साल से 10 लोगों के नाम दे दीजिए मुझे इसी दिल्ली में जिसने सेल्फलेसली सोसाइटी के लिए काम किया, 10 लोगों के नाम दे
यही रीजन था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, इंपा को। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसफर पोस्टिंग ही मुझे करवाना था, और वो भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर होके, अगर डायरेक्टर प्रोफेसर मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कुलदीप यार एक काम करना है, डीजी सर से मिलवा दो यार, वो एमएस का पोस्ट निकला हुआ है, वो डायरेक्टर एम्स का पोस्ट। कभी मना नहीं किया, गए एज ए डीजी, ही हैज डन हिज बेस्ट, आउट ऑफ वे जाके उन्होंने मदद किया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर एम्स बनने के बाद दूसरे इधर उधर के एम्स के डायरेक्टर भी बनाए, ईएसआई के कमिश्नर भी बनाया, एमएसएस भी बनाए, बट उन लोगों ने क्या किया फिर सोसाइटी के लिए? क्वेश्चन ये है कि आपने तो फायदा ले लिया कम्युनिटी का, कि ये कहे कि भाई हम आपकी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आप हमारी मदद करिए, उन्होंने कर दिया। फिर क्या किया? कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी से भी, मेरा एम से टर्मिनेशन हुआ, हमेशा मैं कहता हूं, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने ये कहा कि आप मेरे फेवर में आप डेमोन्स्ट्रेट करिए, कोई भी बता दे, कभी मैंने किसी से कहा हो कि आप मेरे फेवर में चलिए, मेरे साथ कोर्ट केस चलिए, मुझे केस लड़ने के लिए पैसे दे दीजिए, या मेरा परिवार भूखा है, या मेरे लिए कुछ मदद कर दीजिए, इस तरह की एक भी एग्जाम्पल पूरे दिल्ली में अगर कोई है, कोई भी बता दे कि अगर डॉक्टर कुलदीप ने पर्सनल फेवर किसी से मांगा हो। मेरे टर्मिनेशन के बाद डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था एम्स में, पहली बार सारी फैकल्टी एम्स की सड़कों पे थी, स्ट्रीट में थी, और 90% जो स्ट्रीट पे थे वो जनरल कास्ट की फैकल्टी थी। यू विल बी सरप्राइज, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो क्यों आए थे, उसके रीजन बहुत सारे हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा यह था कि जब एम्स में गया, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती थी, रूल्स रेगुलेशंस की बात होती थी, तो सही और गलत क्या है, ये एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर होके डे 1 से बोलना शुरू किया था। उनको लगा था कि कुछ फैकल्टी, अब यंग फैकल्टी ऐसी आई है कि जो शायद इस इंस्टीट्यूट का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ बदलाव हो। बाकी के तो सारे स्लेव थे। आप एक बार एम्स की फैकल्टी बन जाएं, एक बार गलत काम कर दें एज ए फैकल्टी, आपको जिंदगी भर उन्होंने गुलाम बना के रखा है। व्हाट हैपेंस विद श्रीनिवास देव, प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ एम्स, इनको भी इतना तंग कर दिया था कि इनको डिप्यूटेशन लेके जाना पड़ा था। आज देखिए more than 350 vacancies are there in the All India Institute. अभी न्यूज आया है मेरे को, मैं हर फोरम से ये बोलता हूं, पिछले 1 साल में मैंने 3-4 बार ये मुद्दा उठाया। अभी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जो रिक्रूटमेंट को उसको देखेगी और उसको एक्सपीडाइट करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस चीज से सफर रहे हैं और यदि आप पोजीशन में पहुंचते हैं, तो फिर वो संवेदनशीलता वो क्यों नहीं दिखती? जब आप जो चीज अपने लिए एक्सपेक्ट करते थे, आप वो फिर अपने दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं करते? तो बहुत ज्यादा काफी टाइम हो गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी फैकल्टी या जो भी हमारे मेडिकल प्रोफेशनल, जो मेरे स्टूडेंट्स, जो भी हमारे जिस फील्ड में और जहां भी हैं, एक चीज जरूर याद रखें कि हमारा गोल क्या है, और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्त और दुश्मन के बारे में, क्योंकि दोस्त और दुश्मन का दोनों का गोल एक नहीं हो सकता। जो अभी स्लोगन जो चेंज किया ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं हो सकता। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो हो सकता है, लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं हो सकता, क्योंकि सभी सुखी हो जाएं और सभी का हित हो जाए 100% लोगों का, तो दुखी कौन रहेगा? लेकिन हां, मेजॉरिटी जो दुखी हैं उनका वो सुख रहें, वो ज्यादा हेल्दी रहें, यही कामना है। और शायद इंपा का जो फॉर्मेशन है इसी उद्देश्य के साथ हुआ है।
और आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और इसमें डिस्करेज होने की कोई बात नहीं है कि लोग कम हैं। मैं समझ सकता हूं, हमारी नई टीम ने काफी मेहनत कर रहे हैं, ये बच्चे हैं। आंदोलन को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी हमारे लोगों की है, और हम लोग ही यही चाहते हैं। जैसे SC ST मेडिकल एसोसिएशन में जब मैंने छोड़ा तो एक यंग डायनेमिक टीम को दिया, अब वो लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, कोई भी रीजन हो, है ना, एक्टिविटी उस लेवल पे नहीं हो पाई, तो मैं अपने उन ऑफिस बियरर्स को या उन अपने कलीग को मैं दोस्त तो नहीं दूंगा भाई। अगर आज 3 या 4 ऑफिस बियरर हैं, समाज तो बहुत बड़ा है, हजारों लोगों में मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो अगर उन लोगों में काम नहीं कर पाए 3-4 लोग जिनको आपने ऑफिस बियरर एक्सेप्ट किया, तो जिम्मेदार वो अकेले नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए आज जो लोग नहीं आए, तो जिम्मेदार ये लोग नहीं हैं जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, जिम्मेदार वो लोग हैं जो कमिट करके, या तो वो अभी एलूप में हैं, या उनको रियलाइजेशन नहीं है, या वो जागृत लोग नहीं है, सोए हुए लोग हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी सोए हुए लोग हैं। लेकिन जितने लोग भी आए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा मैंने कहा, बाबा साहब ने हमेशा ये कहा है और हमेशा लिखा भी है, गांधी एंड राणा, कि सोशल वर्क इज द मोस्ट थैंकलेस जॉब। तो अगर हमको थैंकलेस जॉब करने में मजा आता है, राइट, हम चाहते अगर हम पागल हुए और हम पागलों की तरह काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि 4-6 लोग और हमारे तरह पागल और निकलेंगे और ये थैंकलेस जॉब करेंगे, और हो सकता है ये संख्या अगर धीरे धीरे बढ़ी। और डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि समाज में 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, उस समाज की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखेगा। तो यहां तो लाखों में है और हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। तो रियल अगर रिप्रेजेंटेटिव अगर हमारे लोग आते हैं, रियल 10 रिप्रेजेंटेटिव अगर दिल्ली में हम क्रिएट कर पाए जो सेल्फलेसली काम करें, और सिर्फ ये ना सोचें कि मेरे जीते ही जब सब कुछ हो जाए। 5000 साल की गुलामी 50 साल में तो नहीं जाएगी, और मेरा वर्किंग पीरियड जो होगा एज ए प्रोफेशनल वो कितने साल का होगा, गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट भी बोलूं तो नॉट मोर देन 30 इयर्स, तो 30 साल से ज्यादा नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि 30 साल में मैं आपको आजाद करके और पूरा हेल्थ सिस्टम चेंज करके मैं निकल जाऊंगा? इट्स इम्पॉसिबल। इट विल टेक्स टाइम, इट विल टेक टाइम। एटलीस्ट अगर 5000 साल की गुलामी है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 100 साल तो लगेंगे ही। अगर हम अपने दुश्मनों को भी, अगर उनकी रफ्तार को भी करें तो 100 साल तो लगेंगे। उनको 100 साल लगा तो हमें भी 100 साल लगेंगे। लेकिन उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है, हमें आशावादी होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें हमारी अप्रोच ठीक होना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आए, अगर हमने अप्रोच किया 100 लोगों को और 100 लोगों में यदि हमारे 20 लोग आए, ठीक है आज 20 लोग आए, परिस्थिति हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है अगले बार हमारे 20 में से 50 लोग हो जाएं, अगले बार 75 लोग हो जाएं, राइट। तो इससे निराश होने की बात नहीं है। आपने मुझे ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी और आशा विश्वास के साथ कि आप लोग आगे भी समाज का काम करते रहेंगे। डॉक्टर कुलदीप का काम मत करिए, लेकिन अपनी जो गोल्स हैं, जो बाबा साहब ने गोल निर्धारित किए, उसके लिए आप काम करेंगे। इसी और आशा विश्वास के साथ थैंक यू वेरी मच।